This conference will now be recorded. Okay, just say present. Ahimsa Das. Yes, sir. Avdesh Agrawal. Present. Avdesh Agrawal. Sir, present. Okay. Are you using a earphone or not? Headphone? Do you have headphone? Yes, sir. Using headphones. Okay. Deepika Singh. Present, sir. Jayant. Present, sir. Kartika. Present, sir. Mayank. Present, sir. Naisha. Present, sir. Then Ojasvi. Present, sir. And Rishabh Agrawal. Present, sir. Okay, very good. Just type present and we are going to solve question number 1. मेरे ख्याल से कार्तिका आपको अपना डाउट समझ में आया बेटा? Yes, sir. Okay, चलिए कार्तिका, you are going to explain this question now. How to solve? Yes, sir. This question will be solving by general formula 1. Okay. So what Which is the is general? an is equal to a plus n minus 1 into d. A plus n minus 1 into d. Very good. So what is n here? An is 4. What is a? A we have to take out. Have to find Okay. out. What about n minus 1? 6. 6 What into was minus 4. 6 into minus 4? Simplify Kartika and tell me what is the value of a. Yes, sir. Sir, a is equal to 28. So your answer is option D. Yes, sir. Okay, we'll check it. Then what about question number 2? Question number 2, who would like to solve? Let's start from Ahimsa Das. Yes, sir. Sir, Okay. an equals to a Ahimsa, plus first of all, read the question. n equals 3.5 d. Read it loudly. Read it for everyone. In an AP, if a equals to 3.5, d equals to 0, n equals to 101, then an will be Okay. sir 3.5. Okay, explain what is given and what to find. Sir, a is given. What is A? Sir, 3.5. First term of the AP is 3.5. Then what is D? 0. Common difference is 0. What is the mean? What it mean कि common difference 0 होगा? आप इसको कैसे समझते हो? Sir, a2 minus a1. The second term, the difference between the second common difference 0 है, इसका मतलब बताइए. सर इसका मतलब है कि जो डिफरेंस होते हैं एपी का जो जैसे 1 2 3 तो इसमें कॉमन डिफरेंस 1 है सब में इतना ही डिफरेंस है एपी में. तो ए अगर 3.5 है फर्स्ट नंबर तो सेकंड नंबर क्या होगा? 3.5. इस क्वेश्चन में हाँ, इसी क्वेश्चन में 3.5. अगर कॉमन डिफरेंस 0 है और फर्स्ट टर्म 3.5 है तो सेकंड टर्म क्या होगा? सर 3.5. और आगे के भी टर्म क्या होंगे? सर 3.5 ओनली. तो सारे के सारे टर्म 3.5 है. अब आप कितने भी टर्म तक चले जाओ, इसने बोला है कि एन निकालो, जनरल टर्म निकालो, तो जनरल टर्म क्या आएगा इसका? ऑब्वियसली 3.5 आएगा. इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? बिना सॉल्व किए बन जाएगा. No. ऐसे ही ओरल. ठीक है. देन क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 3 वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड इन द list the next person is Avdesh Agrawal. Would you like to read the question, Avdesh? Yes, sir. Please. The list of numbers minus 10, minus 6, minus 2, 2, and so on is options are an AP with D equals to minus 16. Okay, Option don't B read the option. Don't read the option, please. Just tell me ये pattern आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं? Which kind of the Yes, pattern sir. it is? Yeah.
Is it AP or not AP? Sir, First of all, sir, it is Is an it AP. it is an AP. So if it is an AP, then can you tell me what is the common difference? The The numbers -4. are increasing or Sorry. decreasing? Sir, Numbers are they are increasing. increasing by what? Sir, by 4. Increasing by +4. So what should be the option? B. 3. Sorry, B is the right answer. Then next, Deepika Singh, please read the fourth question. The 11th term of the AP -5, -5 upon 2, 0, 5 upon 2 is. Okay, this is an AP. Fine, Deepika. Yes, sir. So AP is given here you as the first term. Tell me what about the first term? Deepika, first term. First, yes, sir. So difference 1 upon. I'm talking about the No, first no, term. no. First term is -5. Yeah, first term is -5. Okay, now it is an AP. So there should be a common difference between every terms. Okay, fine, Deepika. Yes, sir. तो बेटा अगर कॉमन डिफरेंस होगा सारे टर्म में, इसका मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तो पता लगाओ कॉमन डिफरेंस क्या है, देख के बताओ जल्दी से कि कॉमन डिफरेंस क्या है. सर वही तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर सकते हैं. बहुत ध्यान से देख के बताओ, आसानी से दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा. चलिए दीपिका आप सोचिए, बाकी नेक्स्ट किसी से बात करते हैं. नेक्स्ट है जयंत. यू टेल मी व्हाट इज कॉमन डिफरेंस. जयंत. सर कॉमन डिफरेंस है दो. बहुत क्वेश्चन है Sir, may I? ओजस्वी टेल मी. Sir, may I? या Sir, 5/2 is the common difference. 5/2 कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगाया तेजस्वी ने, ओजस्वी ने इतना जल्दी? Sir, fourth term minus third term. ये तो दिख रहा है 0 है, बढ़िया, आसानी से मालूम चल रहा है. वेरी गुड. तो कॉमन डिफरेंस भी मिल गया. और उसके बाद फिर और कुछ चाहिए क्या हमको? कुछ दिया है. 11 टर्म का मतलब क्या है? 11 टर्म निकालना है. सर Yes, sir. तो 11 टर्म अगर निकालना है Yes, तो sir. n क्या होगा? n क्या होगा ओजस्वी? Sir, 11. 11 होगा. अब क्या बच गया? फॉर्मूले में से क्या निकालना बच गया? जनरल टर्म. Yes, आंसर sir. बताओ दुकान. जनरल टर्म निकालने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब तो नहीं. The formula. हाँ, तो ये 10 फॉर्मूला. ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? हाँ सर. ऑप्शन क्या है? Yes, sir. बी है. बी आंसर है. चलिए, अगर ये पहला स्लाइड सबको समझ में आ गया तो यस टाइप करिए. फर्स्ट स्लाइड अगर समझ में आ गया तो यस टाइप करते चलिए. जिनको डाउट है वो डाउट भी लिख सकते हैं. जस्ट टाइप यस अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए. जयंत, तुम पिछली क्लास में कहाँ थे? ओजस्वी ईयरफोन यूज करो, आवाज आ रही है. जयंत, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर. यस सर. कहाँ थे आप पिछली क्लास? तो पिछले क्लास में मैं इधर रायपुर आ रहा था उस टाइम. रायपुर आ रहे थे? हाँ सर. चलिए बेटा, इरेगुलर रहेंगे तो क्लासेस में ज्वाइन नहीं करने दूंगा, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप से मैं निकाल दूंगा, इतना याद रखो. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जयंत तुमने पढ़ लिया क्या? तुम ही पढ़ो, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 5 तो सर दिख नहीं रहा था, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा नीचे आएंगे क्या स्लाइड? थोड़ा स्लाइड नीचे कर दीजिए ना, दिख नहीं रहा. बेटा स्लाइड जितनी जगह है उतने पे ही रखी हुई है, और नीचे हो नहीं सकता वो. आप मोबाइल पे पढ़ाई करते हो ना?
हाँ सर, तो 2 मिनट सर, मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट पर्सन, कार्तिका दिनेश तो हो Sir, गया। may I मयंक tell? सिंह, Sir, may I tell? दीपिका रीड द क्वेश्चन। The first four terms of AP whose first term is -2 and the common difference is -2 are. Sir, option C. पहले एक्सप्लेन करिए, क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए। सर इसमें बोल रहा है कि एक AP है, उसमें से फर्स्ट टर्म -2 है और सभी का डिफरेंस -2 है। ओके, तो क्या होते जाएगा नंबर? -2 ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए? सर ऐड करेंगे। कितना आएगा? सर -2 -2 -4 then -4 -2 -6 and -6 -2 -8. Okay, perfect. Right answer. The right option is B. Which option? B or C? Sir C. 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 Okay. Let's see question number 6 now. सर मैं You want to read the question, Jayant? पढ़ो। सर मैं हाँ पढ़ो। The 21st term of the AP whose first two terms are -3 and 4 is. Sir, Okay. Explain the question. answer is B, 137. Explain the question. Explain the question. सर इसमें हम जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। सर फर्स्ट ए हमको पता है जो है -3 और हमको चाहिए कॉमन डिफरेंस। सर कॉमन डिफरेंस के हम प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो फर्स्ट टू टर्म आपको पता है। जयंत आपके साथ कनेक्टिविटी इशू है। ओके मयंक आप पढ़िए, आप बताइए। मयंक यस सर। बताइए। सर सीधा सर क्वेश्चन भी पढ़ना है? नहीं पढ़ना नहीं है, समझाना है। सर इसमें n दिया है 21 और a1 a2 दिए हैं -3 और 4, तो सर बस ये बताओ, कॉमन डिफरेंस शुरू के दो टर्म दे हाँ दिया है, शुरू के दो टर्म हाँ दे दिए। और कॉमन डिफरेंस भी आपको दिख गया होगा। कॉमन डिफरेंस कितना है? हाँ 7 7 है कॉमन डिफरेंस। 7. हाँ सर। तो सर n दिया है, d दिया है और a हाँ, भी दिया है, तो सर nth टर्म निकालना है। तो बस फॉर्मूला 21 लगा तक के। आपको पहुंचना है। 21 तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? 20 को 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और 3 में ऐड कर देना चाहिए। सिंपल सा फंडा है ना, अगर फॉर्मूला नहीं भी पता हाँ हो सर तो। समझ में आ रहा हाँ है? कितने गैप मिलेंगे? कितने सारे गैप मिलेंगे? 20 गैप मिलेंगे। 21 1 से लेकर 21 तक के नंबर में गैप, समझ रहे हो? हाँ यस सर। जैसे ये नंबर मैंने रख दिए 1 2 3, ठीक है। अब अगर आपको ये पता है और गैप पता है तो थर्ड में पहुंचने के लिए कितना गैप ऐड कर रहे हो? 3 - 1 3 - 1 है ना, तो 2 गैप ऐड कर रहे हो। तो वैसे ही अगर ये आपने एपी स्टार्ट किया, ये इतने सारे नंबर हैं, सपोज आपको इस पोजीशन पे पहुंचना है और ये इतने सारे गैप्स हैं, ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और गैप भी पता है तो गैप को ऐड करते जाओगे। तो गैप कितने बार ऐड हो रहा है? कितने बार ऐड हो रहा है? जितने टर्म्स हैं उससे एक कम, कम दिख से रहा है? उससे एक कम। जितने टर्म्स हैं उससे कम बार ऐड हो रहा है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन डिफरेंस को n-1 से और a से ऐड कर देते हैं। तो चीजें शॉर्टकट तरीके से और कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला दोनों से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही बताएंगे कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अभी। और क्वेश्चन नंबर 7 आई वुड लाइक टू इनवाइट नाइशा पारेख, प्लीज रीड द क्वेश्चन। If the second term of an AP is 13 and the fifth term is 25, what is its seventh term? ओके तो सेकंड टर्म कितना लिखा है बेटा? The 13.
ओके तो ये सेकंड टर्म है, ये इस पे आ गया 13, देन फिफ्थ टर्म 25. यहाँ पे 25 आ गया, देन क्या है सेवेंथ टर्म आपको बताना है, ये वाले पोजीशन पे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, ये पिक्चर ऐसा कुछ इस तरह से है, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बट ऐसे ही अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना हो तो नाइशा कैसे एक्सप्लेन करेगी? व्हाट इज योर वर्जन ऑफ दिस आंसर, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? सर a plus d equal to 13 है और a plus 4d equal to 25 है। वेरी गुड। तो सर हम उससे d फाइंड कर सकते हैं, तो d 4 आएगा। अच्छा तो ये अगर ऐसा है कि सेकंड टर्म पता है और क्या पता है हमको, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म पता है। अच्छा ये बता सकते हैं क्या कि फिफ्थ टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कितना क्या 12। आएगा, मतलब गैप आएगा, कुछ गैप आएगा, कितने गैप आएंगे, हाउ मेनी गैप्स आर देयर, अगर दोनों को माइनस कर दूं तो 2 गैप। Sir, गैप है, 3. 3 गैप्स आ रहे हैं, 3 गैप्स आ रहे हैं। तो अपन ने क्या किया कि सीधे सीधे क्या माइनस कर दिया, फिफ्थ टर्म में से क्या माइनस कर दिया, सेकेंड टर्म माइनस कर दिया। तो फिफ्थ टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है, 3D आएगा। तो 3D कितना आ रहा है, 12। 8 सर 12। 12 आ रहा है, ओके सॉरी। देन D क्या आएगा, D 4 आएगा। तो D अगर 4 आएगा तो आप बता सकते हो कि 7 टर्म क्या होगा, क्या ऐड करना चाहिए, 5 प्लस 2 into 4, 2 into 2. 2 into 4. हाउ मच, So 25 plus 2 into 25 4. प्लस 33। 33. अब हम बार बार फॉर्मूले पे तब जाएंगे जब हमको ऐसे ही नहीं बनाते बनेगा, ठीक। अगर हम ऐसे बना लेते हैं तो फॉर्मूले पे हम नहीं जाएंगे, हम फॉर्मूला अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यही आपका सबसे बड़ा पावर होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि हम फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं के बराबर करें, नहीं के बराबर। ओजस्वी प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन। Which term, sir, am I audible? Yeah. Which term of the AP 21, 42, 63, 84 is 210? ओके विच टर्म का मतलब क्या समझाएंगे, विच टर्म मतलब कौन से पोजीशन पे ही है ना, Yes, yes, इस sir. पोजीशन पे ये Yes, नंबर आ sir. रहा है, ये हमें चेक करना है। ओके तो अभी फिलहाल तो ओजस्वी आप मुझे बताओ एपी जो लिखा हुआ है उसका पैटर्न को क्रैक करो और पैटर्न क्रैक करके इसके पैटर्न को समझाओ कि किस तरह का पैटर्न है, ये क्या पैटर्न है इसका, पहले बताओ क्या हो रहा है एपी में। ओजस्वी Sir, हाँ इस एपी का sir, पैटर्न common difference is 21. कॉमन डिफरेंस 21 है, मतलब हर बार 21 ऐड होते जा रहा है ना। Yes, sir. ये जो गैप है उस पे 21 ऐड करते जा रहे हैं तो अगला नंबर हमको मिलते जा रहा है, दैट्स द पैटर्न। ओके कॉमन डिफरेंस इज 21, फाइन। तो अब हमको चाहिए 210 चाहिए, क्या चाहिए 210। कोई अंदाजा लगा सकता है कि, हाँ कोई अंदाजा लगा सकते हो, हाँ जैसे अगर मैं बोलूँ एक नंबर, हाँ वही Sir? मैं पूछने वाला। हाँ बोलो। Sir, हाँ sir, बोलो it is बोलो। the table of 21. यस इस टेबल ऑफ 21, परफेक्ट। तो अभी एपी में जाने की जरूरत पड़ी क्या हमको? No, sir. तो ऐसे ही देख No, के sir. मालूम चला ये 10th टर्म होगा यार, क्योंकि कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, ये 10 दिख रहा है ना, 10 मल्टीप्लाई हो गया, पहले नंबर पे 10 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। a इंटू क्या हो गया 10, यही लास्ट टर्म है आपका। तो चीजें आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके Yes, ऋषभ sir. अग्रवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषभ अग्रवाल, क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 9, क्वेश्चन नंबर 9। If the common difference of an AP is 5, then what is a 18th term minus 13th term? अच्छा एक्सप्लेन करो पहले क्वेश्चन। Yes, sir. सर उसमें पहले ही बोलिए कि ये जो AP है जिसमें
ए हाँ। टर्म को लेके चल रहे हैं, उसका कॉमन डिफरेंस 5 है। ठीक है भैया, देन और सर वो पूछ रहे हैं कि 18th माइनस 13 टर्म की वैल्यू क्या होगी। इससे हमें पता चल रहा है कि 18th और 13 टर्म के बीच 5 का डिफरेंस है। हाँ तो ओके, इनका डिफरेंस बताना है अपने को। तो Yes, अगर sir. मैं बोलता हूँ कि ये वाला टर्म जो है वो 13th पोजीशन है, सपोज ये 13th पोजीशन है, एक डायग्राम में आपको बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, से कि ये 13th पोजीशन है, ठीक है। तो Yes, 18 कहाँ पे आएगा? 14, 15, 16, 17 ये दिखा आप? चार गैप के बाद, 5 गैप्स के बाद, पाँच पांच गैप कैसे मालूम चल रहा है? सीधे सीधे नंबर माइनस कर दिया 5D। यस सर, ठीक है, तो आपको सवाल सीधा पूछ रहे हैं 5D क्या होगा, व्हाट इज 5D? 25। मतलब 25। देखो, ये मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ ना, इसको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही आप इसको जो है समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है कि एपी का जो बेसिक नेचर है उसके पास जाना पड़ेगा, और आप वहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, ठीक है। तो आप जब तक बच्चा फॉर्मूला यूज करते रहेगा, आप सेकंड में आंसर दे देते हो। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन करना है, और हम पहुंच गए वापस टॉप में। एंड अहिंसा दास, इट्स योर टर्न नाउ। Yes, sir. What is the common difference of an AP in which A18 minus A14 equals to 32? सर, सो हम इसमें जो डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें हाँ, तो 4 18 और चार 14 का में कितने गैप आ रहे हैं? 4D आ रहा है। यस सर, सो हम 4D को 32 में इक्वेट कर देंगे और D 8 हो जाएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी समझ में आ रहा है हमको क्वेश्चन कैसे बनाना है? माइंड पे ही आपको एपी जो है Yes. फॉर्मूले पे नहीं लाना है, एपी को आप अपने माइंड पे इंस्टॉल करिए। अवधेश अग्रवाल, योर टर्न, 11 नंबर क्वेश्चन। Yes, sir. Read, Two please. APs have the same common difference. The first term of one of these is -1, and that of the other is -8. Then the difference between their fourth terms is. सर, तो दो, इसमें हाँ, हमको दो केसेस लेके बनाना पड़ेगा। पहले हमको ये पता है कि दोनों के कॉमन डिफरेंस इक्वल है और दोनों है। का nth टर्म इक्वल है। दोनों का क्या इक्वल है? nth टर्म। कहाँ पे लिखा है ये? सर, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स, यानी दोनों का nth टर्म 4 होएगा। देखो, इसका फर्स्ट टर्म पहले बता देते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल है, पहला इंफॉर्मेशन ये है। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि एक में जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है, और दूसरे में फर्स्ट टर्म है वो क्या है? -1 है। अच्छा, ये -8। दोनों में डिफरेंस सेम है, इसका मतलब समझ रहे हो आप? दोनों सेम स्पीड Yes, से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों सेम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? yes, sir. कॉमन डिफरेंस होने का मतलब दोनों सेम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। अब बताओ, पहला वाला अगर मैं आपको बोलूं, दो रनर हैं, ठीक है, 2 रनर है, एक AP1 है, एक AP2 है। AP1 कौन से पोजीशन से दौड़ना शुरू कर रहा है? अवधेश, जहाँ से -1 -1 से। और AP2 कहां से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? -8 है, और दोनों सेम स्पीड से दौड़ने वाले हैं, दोनों सेम स्पीड से दौड़ने वाले हैं। ये सिचुएशन समझ में आ रहा है? यस सर। प्रोग्रेशन का मतलब यही होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करना और फिर एक कांस्टेंट स्पीड से आपको जंप करते करते जाना है, जैसे फ्रॉग जंप करता है, जस्ट लाइक दैट। तो ये 2 प्लेयर हैं, इस तरह से जंप करते करते ये जाएंगे। आगे लिखा हुआ है देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म पूछ रहा है, फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताना है। तो फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताने के लिए किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? आई डोंट वांट टू लिसन फॉर्मूला। यस सर। अगर किसी के दिमाग में आइडिया हो रहा है तो प्लीज बात करिए। सर मेरे पास है। हाँ बताइए सर। सर सबसे पहले केस में -1 और -8 के बीच का डिफरेंस 7 है। हाँ वेरी गुड। तो बेटा अगर स्टार्टिंग पॉइंट में ही 7 का डिफरेंस है तो फोर्थ टर्म में भी क्या डिफरेंस आएगा? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। स्पीड सेम है। यस, तो इसीलिए किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी क्या? No, नहीं sir. पड़ी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बनाना कैसे समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में किसी को हेलो? यस सर।
इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? आगे No, बढ़ते हैं, sir. नेक्स्ट स्लाइड। तो सवाल को बनाना कैसे है, एपी को समझना कैसे, वो देखिए। हमको फॉर्मूला नहीं पढ़ना, हमको समझना है एपी होता क्या है, इन क्वेश्चंस के थ्रू होता क्या है एपी, सिर्फ वही समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टर्न है दीपिका सिंह, वुड यू लाइक टू रीड द क्वेश्चन? If 7 times the 7th term of an AP is equals to 11 times its 11th term, then its 18th term will be 7 times of an AP is Same. equal to 11th time of its 11th term। क्या मतलब है इसका? मतलब कि सर जो 11th टर्म है उसका 7 टाइम्स ये है, यही है ना? क्या सर? सुनी नहीं। देखो ना बेटा, स्क्रीन में लिखा हुआ है। सर आप कुछ बोले अभी? हाँ मैंने बोला, आप जो बोलना चाह रहे हैं उसका मतलब यही है ना, जो स्क्रीन पे लिखा है। Yes. हाँ। sir. ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 18th टर्म क्या होगा ये पूछ रहा है ना? यस सर। Yes. sir. क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है इसको अगर हम बनाना चाहें तो? किसी के पास कोई आइडिया आ रहा है? का 7 टाइम्स इक्वल है 11 के। Yes, sir. बताइए। सर हम लोग दोनों में से कोई भी एक साइड का हाँ इज इक्वल टू 11/7। तो सर तो अब हमको 18 equals to A11 plus A7 that is equals to 11 plus 7। आपको रेशो साफ साफ दिख रहा है, 11 टर्म पे 11, 7 टर्म पे Yes, sir. 7। अब ऑप्शन या 7। चॉइस देख के आप बिल्कुल बता सकते हो कि 18 पोजीशन पे 18 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। यस सर। समझ में आ रहा है? अच्छा, आप वैसे भी फॉर्मूले से बना के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ये गलत है क्या? नो सर। तो एक बार चेक करना और मुझे बताना कि हमने सही बनाया है कि गलत बनाया है। अगर गलत होगा तो हम इसको वापस से डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सर इसका आंसर सर, 0 ये नहीं गलत होगा? है, 0 गलत है होगा ना? सर। इसका आंसर 0 Yes, आ sir. रहा है। अब बताओ आंसर 0 क्यों होगा? सर क्योंकि जो 11th टर्म है और जो 7th टर्म है उनको मिला देंगे तो 18th टर्म निकल जाएगा। यस यस, वेरी गुड। इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा वो? 18। तो ये लॉजिक 18 यहाँ पे गलत हो गया, ये लॉजिक यहाँ पे गलत हो गया। सॉरी, ये इक्वेशन ऐसे नहीं बनेगा। तो और दूसरा तरीका क्या होगा फिर? दूसरा तो दोनों तरीका को बना के उन दोनों को इक्वेट कर देना। यस, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपको अंदाजे से काम नहीं चल पाएगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको फॉर्मूले के थ्रू जाना पड़ेगा। और अगर कोई इसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकता है बिना फॉर्मूले के तो आप प्लीज मुझे अगली क्लास में बताइए, ठीक है? इट्स अ टास्क फॉर यू। बिना फॉर्मूले के समझना है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हुए इसको समझाना है, ठीक है? टाइम नहीं, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। Who would like to explain 13? Me. Question number, please read the question. Do be next, बढ़िए। Then the fourth term from the end of AP minus 11 comma minus 8 minus 5 is still 49। तो एंड से फोर्थ टर्म निकालना है, क्या करना चाहिए? एपी को रिवर्ट कर दें, चलेगा? यस सर। यस सर। पहले ये बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? पहले बताओ स्टार्टिंग से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग है भी कि डिक्रीजिंग है? पहले बताओ। सर इंक्रीजिंग है। सर इंक्रीजिंग है। किस स्पीड से बढ़ रहा है? 3 की -3। हाँ, सॉरी 3 है। स्पीड क्या है? +3 है। जब उल्टा करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? -3। -3। कितना? फोर्थ टर्म बोल रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? -3 करो। 46 46 43 40। नंबर सही लिख रहा हूँ? सर 40 माइनस और किया इसको। हाँ, 37 होगा क्या? गलत है। वो 40 होगा ना? 43 -3। हाँ 40 होगा, ये गलत हो गया था। ठीक है, ऑप्शन बी है फिर, है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जिसका 10 है वो पढ़िए।
नेक्स्ट अल्फाबेटिकल आपको नाम दिख रहा है सबको? कार्तिका, इट्स योर टर्न. Yes, sir. The famous mathematician associated with finding the sum of the first 100 natural numbers is C. Gauss. ये जीके है. कभी गॉस के बारे में डिस्कशन करेंगे. ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन. और एपी कैसे डिस्कवर हुआ, दुनिया के सामने एपी कैसे आया, ये 5 साल का बच्चा अपने क्लास में एक टीचर ने मैथ्स दिया था, उसको सॉल्व करते करते डिस्कवर किया था. इसकी कहानी कभी और करेंगे. क्वेश्चन नंबर 50 नेक्स्ट टर्न. Yes, sir. Yes, sir. If the first term of an AP is -5 and the common difference is 2, then the sum of the first 6 terms is कॉमन sir, डिफरेंस दे दिया है. कॉमन डिफरेंस प्लस 2. वेट तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इंक्रीजिंग एपी डिक्रीजिंग, पहले बताओ. increasing. इंक्रीजिंग है तो क्या होगा? नेक्स्ट नंबर 3 होगा. हाँ सर, -3 होगा. देन -1. देन उसके बाद 1. ओके, ये पैटर्न चल रहा है. देन वापस से क्या आएगा? 3. हाँ. तो बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म चाहिए. तो फर्स्ट 6 टर्म तो चलो हम लोग लिख सकते हैं, बहुत छोटा सा है. कैसे निकाल सकते हैं फर्स्ट 6 टर्म का सम? अगर आपको निकालना हो तो ये कर सकते हैं, ये पेयर बना सकते हैं. यस सर. बताओ इनका सम कितना आ रहा है? 0. हाँ, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. वैसे 0. भी दिख रहा होगा, बैलेंस हो रहा है. जोड़ने की जरूरत नहीं, बैलेंस हो रहा है, दिख रहा है. समझ में आ रहा है? Yes, तो जब sir. भी जोड़ना हो फर्स्ट टर्म लास्ट Yes, टर्म sir. को चेक कर लो, अपने आप मालूम चल जाएगा सम क्या होगा. फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे और अभी. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 60 नेक्स्ट टर्न. The sum of first 16 terms of the AP 10, 6, 2, so on is. ओके, क्या लिखा है बेटा? एक्सप्लेन करेंगे. सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स. तो पहले बताइए एपी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या है? Decreasing है. डिक्रीजिंग है. Yes, sir. किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है? So 4, -4. -4 या 4 से डिक्रीज हो रहा है. तो 10, 6, 2 ये समझ में आ रहा है. बोलता है 16 का आपको सम चाहिए, तो बता सकते हो 16 पोजीशन कहाँ पे आएगा? 16 टर्म क्या आएगा? 10 में क्या ऐड करना चाहिए? कितने गैप आएंगे 16 के? 1 से लेकर 16 में कितने गैप आएंगे नाइशा? 15 गैप आएगा. और किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है? -2 की -4? -4. तो 16 टर्म जो आ रहा है, T16 जो आ रहा है वो ये आ रहा है. क्या आ रहा है नंबर? T है. 50 आएगा. -50 आएगा. -50 आएगा. तो -50. तो अभी बताओ नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है? 16 टर्म है तो इवन है ना. कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर्स बनेंगे. और सारे पेयर का सम कितना आएगा? फर्स्ट और लास्ट का सम जैसे 40 आ रहा है, -40, वैसे ही सारे पेयर का सम कितना आएगा? -40 ही आएगा. आप करके देख सकते हो. इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? -50 के पहले वाला टर्म -46. तो -46 इंटू 6 कितना आ रहा है? +40 आ रहा है ना, -40. Yes. ऐसे 8 पेयर्स होंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई -40. आंसर क्या आ रहा है? -320 इज द राइट ऑप्शन. दिया भी है ए. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 17. नेक्स्ट टर्न प्लीज, क्लास का टाइम हो रहा है. 17 किसका टर्न है? ओजस्वी. Sir, ओजस्वी, आर यू देयर? कौन? हिमांशु. चलो ऋषभ अग्रवाल तुम. Yes, sir. In an AP, if A equal to 1, A n term equal to 20, and sum of n number equal to 399, then n is.
समझाओ बेटा, क्वेश्चन समझाओ। सर ए टर्म दिया है हमारे पास, ए एन टर्म भी दिया है, मतलब 28 टर्म का सम 399 दिया है। अच्छा, तो S20 भी दे दिया है आपको 399। मेरे को बस इस 99। लाइन का मतलब समझाओ कि देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है यस सर। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं? 20। नंबर ऑफ 20 दिए हैं। 20। तो कितने पेयर बनेंगे? 10 बनेंगे। 10 बनेंगे। पहले और Yes, आखिरी sir. नंबर का सम कितना आ रहा है? 21। 21। 21 आ रहा है। तो आपको पूछ क्या रहा है इसमें? n कितने हैं पूछ रहा है। यस सर। Yes, sir. कैसे पता लगाएंगे n कितने हैं? नहीं पता हो तो क्या करना पड़ेगा? n/2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो फॉर्मूला क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. तो करना क्या है इसमें? सर उसमें हम लोग Sir, सम n वाला equals फॉर्मूला। to 399 into 2/21 आएगा। हाँ, मतलब 2 जो by सम 21। दिया है उसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? ये फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम का। 21। पेयर से। हाँ, पेयर से डिवाइड। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम। कितना आ रहा है ये? पेयर का सम कितना आ रहा है? डबल डबल आ रहा है ना? 19 19 आ रहा है। तो कितने पेयर हो गए? अच्छा, कितने पेयर हो जाएंगे अगर मैंने सर 19 से डिवाइड? 38 हाँ, 38 38 नंबर्स होंगे। पेयर तो कितने हैं? कितने पेयर पेयर है? 19 पेयर्स होंगे। 19 है। टर्म्स कितने होंगे? अच्छा। 38 होंगे। परफेक्ट, 38। समझ में आ रहा है। देखो एपी जो है ना, Yes, मैथमेटिक्स sir. बेटा फॉर्मूले से पढ़ोगे ना कुछ दिन तक याद रहेगा, कुछ दिन तक बना पाओगे, बट कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे हमेशा बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट टर्न कौन है? Sir, मैं कौन? दीपिका तो नहीं है। चलो अहिंसा दास, यू रीड द क्वेश्चन। The sum of first 5 multiples of 3 is a। हाँ, तो 3 के सर मल्टीपल। तो सर 3 का टेबल करेंगे तो 3 5 15। वेरी गुड। तो उसे 15 प्लस 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। ओके। सर तो टर्म्स 5 है वो ऑड है। अब देखो यहाँ ऑड है तो कितना? ऑड अगर है तो सम निकालेंगे कैसे अगर ऑड आ जाए तो? फिर एक सिंपल सा है। ऑड अगर है तो 18/2 का हाफ करिए 9, वही मिडिल टर्म होगा। अब 9 कितने बार हाँ। आएगा? अगर 5 टर्म्स हैं तो 9 कितने बार आएगा? 3 बार 5। आएगा। 2 बार पेयर में आएगा और 1 बार सिंगल आएगा। हाँ। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो कभी भी अगर ऑड हो तो मिडिल टर्म निकालो, उसका क्या कर दो, हाफ से एक ज्यादा ले लो। जैसे कि अगर 7 टर्म है तो इसका कितने टर्म्स, कितने पेयर बनेंगे? एक 3 पेयर और एक मिडिल टर्म, तो टोटल 4 बनेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मिडिल टर्म 9 मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करना चाहिए? 9 कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 3 बार। गलत बता दिया क्या मैंने? नहीं सर। सर नहीं 18 बताया? 3 बार आया। 18 3 सर बार आ रहा है। 18 दो नहीं, 2 बार आ रहा है। 18 2 बार और एक बार 9 आ रहा है। तो सम निकालना है बेटा। सम कैसे निकालेंगे? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर इससे तरीका ये है सर, 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो सर 3 ब्रैकेट में डालेंगे 1 2 3 4 5 सर सम आएगा हमारा 15 और 3 into 15 45 होता है। आगे ये इस चीज को कैसे समझाओगे? 18 18 9। सर एक्सट्रीम टर्म्स और उसके बाद वालों को ऐड कर दिए और 9 को छोड़ देंगे तो फिर बाकी सबका सम तो हमारे पास 18 और 18 आएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमको एक्सट्रीम का सम पता चल गया 18 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5 हैं, तो अपन उसको 5/2 या 2.5 भी कर सकते हैं। ये भी तरीका है। क्योंकि 2 पेयर बन रहा है, एक सिंगल बन रहा है। ये समझ में आ रहा है? 2 पेयर और एक सिंगल, इसीलिए 2.5 हो रहा है। ओके परफेक्ट। तो सर ये तो फॉर्मूले में ही आ गए ना? बिल्कुल फॉर्मूले पे ही आ गए बेटा, लेकिन अल्टीमेटली तो फॉर्मूले पे ही जाओगे आप। ठीक है, फॉर्मूले पे ही जाएंगे, लेकिन फॉर्मूले को सीधे सीधे रटने के बजाय कैसे जा रहे हैं हम लोग? फॉर्मूले को सीधे सीधे तो यूज नहीं कर रहे ना। यस, कॉन्सेप्ट के थ्रू चल रहे हैं। ओके, तो ये सब आंसर्स इसके लिखे हुए थे, आप मेरे ख्याल से इसको चेक कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन ज्वाइनिंग द क्लास। चलिए कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू टाइप करके Thank you, एग्जिट sir. करें। Thank you, sir. Thank you, sir.